next speaker is Anagha Ghaisas. She's an entrepreneur. Hello. And if you are in Pune or if you're from Maharashtra, everybody knows who is Anagha Ghaisas and what does Saudamini Handlooms do. She runs an enterprise called Saudamini Handlooms. You can see that her store is like a visual delight, and she is a visual delight. Just look at her beautifully draped in her revival paithani. There's a beautiful revival paithani behind her, and she is going to talk to us about her journey from an ordinary textile enthusiast and a consumer to an entrepreneur, and her whole process of reviving the paithani, the traditional paithani, finding age-old patterns, reviving them, setting up her own looms. She's probably the only person in Pune who has her own looms in her store. If you go to her store, you can actually sit on the loom. She has weavers who will teach you how to weave, and you can weave 3 or 4 lines of the fabric, and it's a beautiful experience. So if you come to Pune, do visit her, do try weaving yourself. Only then you will realize the efforts, the meditative state, and the whole experience that hand weaving is. But before I hand over the session to Anagha, let me introduce her formally. She's a very good friend, by the way. Anagha Ghaisas is a person who wears many hats. She's a resident Pune. She's a self-made woman, and she has accomplished massive successes in event management. She's a filmmaker, and she is an entrepreneur who has successfully started and is running an enterprise that involves over 100 weavers. She has made documentary films on the work of great social reformer Shri Nanaji Deshmukh. She's made a documentary film on National Defense Academy, which was released at the hands of President Shri APJ Abdul Kalam. She has done a documentary on the life of PM Shri Narendra Modi, and she has done a wonderful documentary based on the Ayodhya Ram Mandir, which is a film based only on facts and views from both sides of the conflict. Anagha has had a love for handloom saris since always, I think. Over the years, she has come in contact with handloom weavers from many clusters all over India, and she realized that while the knowledge was there, the craft was disappearing because of commercialization, exploitation of weavers on so many levels. She decided to make a difference by building up a company which would ensure the survival of as many weaves as possible, while reviving the art of the original and old designs of Maharashtra's traditional Mahavastra, the paithani, while still making it financially viable. She runs a one-of-a-kind training center in Pune for paithani weaving. Her enterprise, Saudamini Handlooms, provides work to the families of almost 100 weavers. I hand over the session to Anagha, and let's hear what she has to say. नमस्ते, मेरा प्रणाम सब स्वीकार करें। सबसे पहले शेफाली आपको, आदरणीय सोनल मानसिंह जी, सुचेता ताई और पुष्यमित्र जी को मेरा प्रणाम, क्योंकि सुचेता ताई और सोनाली जी ने जिस प्रकार से अपनी संस्कृति को रखा, वेदों के रेफरेंसेस से हमें यहाँ तक पहुंचाया, मेरे आंखों में पानी आ गया। थोड़ी देर सोनाली जी का होने के बाद मैं थोड़ी देर शांत बैठी थी, क्योंकि ये बहुत ही एक लुभावना अनुभव था मेरे लिए, और इससे बाहर निकलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं कभी मिलना चाहूंगी व्यक्तिशः, उनको यहाँ बुलाना चाहूंगी। मेरे बात करने की शुरुआत मैं मेरे देश से करूंगी। ये काम करने का जो एक चस्का कहते हैं इसको, तो ये क्यों हो गया, क्यों ऐसा मुझे लगा कि मैंने ये काम करना चाहिए। देखिए, अपना देश जो है ना, वो बहुत सारे राज्यों से भरा है, और हर एक राज्य का सिल्क अपने अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार अलग अलग है, और उसका वीविंग स्टाइल, वहां का जो निसर्ग में जो फूल है, पत्ते हैं, जिस तरह से ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, उसके अनुसार वहां का वीविंग का स्टाइल, उसके डिजाइन्स, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। आपने इसका अनुभव लिया होगा। सोनल जी ने जो अभी कुछ साड़ियां हमें दिखाई अलग अलग राज्यों की, उनसे आपको ये अनुभव आया होगा। लेकिन मुझे मेरे देश के लिए जो गवर्नमेंट का काम है,
सरकार का काम है, सरकार ने करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना इसमें ये है कि ये मेरा देश है, ये मेरी संस्कृति है, और उस संस्कृति के लिए, उस देश के लिए, महान देश के लिए मेरे मन में गौरव का, आदर का भाव होना ही चाहिए। और उसी भाव को कायम रखते हुए अगर मैंने एक आम आदमी के तहत अगर मैंने ये काम चालू नहीं किया तो कौन करेगा? सरकार देश चलाएगी या ये संस्कृति हमारे टिकने के लिए काम करेगी? मुझे ऐसे लगता है कि ये सब काम आपने, मैंने, बुनकरों ने सबने मिल के करना चाहिए। उसी भाव से मैंने ये काम चालू किया। मैं पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती थी, उसमें भी यही भाव था। तो ये जो अलग अलग राज्यों का वीविंग है, उससे मैं महाराष्ट्र पर आऊंगी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र, पुणे से हूँ। महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी है जिसको महावस्त्र कहा जाता है पूरी दुनिया भर में, उसका नाम है पैठणी। औरंगाबाद के पास पैठण नाम का गांव है, वहां से शायद ये पैठणी की शुरुआत हुई, इसीलिए शहर का नाम उसको दिया गया है। तो ओरिजिनल पैठणी हमारे यहाँ जो थी, तो उसमें ताने बाने के साथ बहुत सारी चीजें, माने अभी जो बाजार में पैठणियां मिलती है, मेरा अनुभव मैं बताती हूँ। जब मैं पहली पैठणी लेने के लिए दुकान में गई और जो 2-3 पैठणियां मैंने खरीद के लाई, तो बाद में जैसा मैं अभ्यास करना चालू किया मैंने, तब पता चला वो सब डुप्लीकेट थी। तो मैं हैरान हो गई, कि कंफ्यूज हो गई कि माने ये डुप्लीकेट है तो ओरिजिनल क्या है। तो मैंने धीरे धीरे अभ्यास करना इसका चालू किया, तो मुझे पता चला कि ये देखिए, मैं पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जैसे ये पैठणी है, ऐसी पैठणियां बाजार में मिलती है। हमें लगता है कि ये पैठणी ओरिजिनल है, लेकिन ये पैठणी ओरिजिनल नहीं है। कैसे पहचानेंगे? जैसा डिजाइन आपको ऊपर दिख रहा है, वैसा हम पीछे देखने का प्रयास करेंगे तो ये कैसे दिखता है। और ये पीछे से, ये ओरिजिनल पैठणी है, ये पीछे से कैसी दिखती है, ये देखिए। ये देखिए, दोनों में फर्क आपको तुरंत पता चलेगा। ऐसा है कि महाराष्ट्र के बाहर के लोग तो इसमें फंसते ही हैं, लेकिन महाराष्ट्र के भी बहुत सारे लोगों को ओरिजिनल पैठणी अभी तक पता नहीं है। ये डिजाइन के बाजू से जो गांठें लगी हुई है, आपको ये लाइन दिख रही है, ये पूरे गांठें हैं। ये गांठें हमारा बुनकर बहुत प्रयास करके एक एक धागा लॉक करके आगे जाता है, और इसी वजह से ये पैठणी 6 से 7 पीढ़ी तक टिकती है। और ये टिकी हुई पैठणियां मेरे पास है, पुरानी 200-250 साल पुरानी, जो हम बाद में देखेंगे। तो मैं आपको ये जो मोटिव्स है बॉर्डर पे, ये हम हैंडलूम पे कैसे करते हैं ये सबसे पहले दिखाती हूँ, और बाद में हम बाकी का सुनेंगे। आइए मेरे साथ, जो हमारी शॉप में यहाँ पे हैंडलूम है, वहां पे हमारे युवा 2 बुनकर बैठे हैं, उनके यहाँ चलते हैं। देखिए, ये कागज है, ये कागज है, ये कागज के ऊपर ये पैठणी के बॉर्डर का डिजाइन ड्रॉ किया हुआ है। तो ये ड्रॉ किया हुआ डिजाइन ये बॉर्डर के नीचे हम ऐसा लगाते हैं, किसी चीज से इसको ऐसा अटकाते हैं, और ऊपर से देख के बुनकर ये काम करता है, धागे बाजू करके वो डिजाइन वो वीव करता है। ये सबसे मुश्किल तरीका है वीविंग करने का। ये ताना है और बाना बुनकर बुनता है, वो बाद में बुन के आपको दिखाएगा। अभी आप देखिए, ये हैंडलूम जो है, ये गणित और शास्त्र का एक अजूबा संगम है। हमें लगता है कि हैंडलूम है, बुनकर गरीब है बेचारा, तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में ये वैदिक काल से, सुचेता ताई ने बताया, वैदिक काल से ये परंपरा चालू है। तो बुनकर साइंस और मैथमेटिक्स से युक्त है, माने बुद्धिमान है। तो ये बुद्धिमान बुनकर क्या क्या काम कर सकता है, मैं आपको पहले एक ये पुराना डिजाइन दिखाती हूँ जो हमने रिवाइव किया है। इसको, ये डिजाइन को बोलते हैं 12 पंजा, और ये प्लेन पल्लू है, इसको तवा पल्लू बोलते हैं। तवा माने प्लेन। अभी ये 12 पंजा कहते हैं, और ये इसको कहते हैं आसावली। ओरिजिनल पैठणी में बोल्ड मोर या पिकॉक्स और पैरेट्स नहीं हुआ करते थे, मिनिएचर हुआ करते थे। तो ये मिनिएचर डिजाइन ये इसमें है। ये 2 आसावली और 12 पंजा, ये डिजाइन अभय और वैभव, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये 2 युवा बुनकर
आपको घूम के बताएंगे। ये है अभय। नमस्ते आप सबको। अभय है औरंगाबाद से और वैभव हरके, वैभव है येवला से। ये दो आपको ये असावली और बारूपंजा घूम के दिखाएंगे। ये पहले हम बारूपंजा देख रहे हैं। ये देखिए वो धागे गिन रहा है हाथ से, कहां से कहां डिजाइन है। अभी ये एक्सपर्ट है इसीलिए उसको कागज की जरूरत नहीं है, लेकिन कागज की जरूरत पड़ती है नए बुनकरों को। नजर देखिए, एक भी धागा इधर उधर नहीं जा रहा है। जितने रंग दिख रहे हैं आपको उतने रिल है यहाँ पे। माने ये ताना है और बाना ये रिलों में से जा रहा है आगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ था पहले तो धीरे धीरे आगे चला गया। अभी देखिए ये ताना यहाँ से यहाँ गया बाना, तो ऐसे करके कपड़ा बढ़ता जाता है। अभी हम देखेंगे हैंडलूम के पार्ट्स क्या होते हैं। अभय हमें इन सब हैंडलूम के, ये हैंडलूम का पूरा एक व्यू हम देखेंगे पहले। ये देखिए अभी अभय आपको जानकारी देगा कि पार्ट्स कौन से हैं, फिर मैं इस पे बात करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे कहते हैं शटल। तो ये ताना और ये बाना रहता है। बाना और ताने का जो बाना, ताने में जो बाना बुनते हैं तो उसको प्रेस करने के लिए ये शटल का काम करता है। और ये तात है, वो तात ताना और ताने का सेपरेट करते हैं। ये पूरा दुपट्टे का लूम है, तो ये ताने 6000 ताने, वो 6000 ताने को 3000 ताने नीचे और 3000 ताने ऊपर करने का काम ये करता है। और ये पीछे बीम बोलते हैं इसे। तो ये सब ताना यहाँ पे 10 सिले का लपेटते हैं और वही यहाँ से आगे लेते हैं। और ये बॉर्डर पे जो डिजाइन बनती है इसे पैठनी की नारायणी बॉर्डर बोलते हैं पुरानी। तो ये सब ऊपर ये डॉबी है, डॉबी के इस्तेमाल से ये डिजाइन बनती है। और डाबी से ऊपर से नीचे ये रोबन वही बोलते हैं इसे, यहाँ पे सेपरेटर्स बोलते हैं। पीछे गोल्डन थ्रेड्स रहते हैं, तो उसको टेंशन देने के लिए वेट लगाते हैं। वहां से आगे खींच के ये गोल्डन कलर के अलग अलग धागे रेशम के धागे में से लेके अलग अलग डिजाइन बनती है। वो ये सब पैंडल के ऊपर से एडजस्ट किया होता है। जैसे पैंडल दबाते हैं तो अलग अलग डिजाइन तैयार होते हैं। देखा आपने, मुश्किल काम है ना। तो ये बुद्धिमान बुनकर पेशेंस, बुद्धि और अपने क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके ये बहुत सुंदर वस्त्र हमारे लिए बुनते हैं। इतना विचार कीजिए, ब्रिटिशों को इतना डर लगा कि उन्होंने बनारस के, वाराणसी के बुनकरों के अंगूठे काटे। विचार कीजिए कितना डर उनको लगा होगा हमारे साइंस और डेवलपमेंट से। अभी हम यहाँ आते हैं, मेरे पास कुछ लोगों की पुरानी पैठनियां, बहुत 200, 250, 300 साल पुरानी पैठनियां हैं, जो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये बहुत पुरानी 250 साल पुरानी पैठनी है जो बहुत खराब हो गई है अभी। ये देखिए, इसकी बूटी, ये ओरिजिनल चांदी की जरी है। अब ये जरी बहुत कम इस्तेमाल होती है क्योंकि चांदी की कीमत बढ़ गई। ये देखिए, जो मैंने अभी काली साड़ी आपको दिखाई, ये ओरिजिनल है। इसको बारूपंजा बोलते हैं। और ये तवा पल्लू जो हमने अभी देखा, ये हमने रिवाइव की हुई साड़ी। अभी ये जरी पुरानी हो गई है इसीलिए उसका फिनिश आपको डल दिख रहा है। ये बारूपंजा, तवा पल्लू, ये एक पुरानी साड़ी है, बहुत ही पुरानी। अभी ये एक साड़ी है जो एक डिजाइन हुआ करता था, जो मैंने तो आज तक ये एक ही साड़ी देखी है ऐसी, ये देखने को मुझे कहीं नहीं मिली। ये देखिए, बहुत ही बुरा, ये तो पूरे सोने का तार है, इतना छोटा छोटा मोटिव इसके ऊपर है। ये भी तवा पल्लू है। माने हम जो देखते हैं कि पैठनी में बहुत बोल्ड बड़े बड़े पैरट्स और पीकॉक्स, ये ओरिजिनल पैठनी कभी नहीं हुआ करती थी। आप समझ लीजिए, ये नाजुक नाजुक काम है। ये भी असावली है और ये मुनिया है छोटा। ये हो गई ये पैठनी। अभी ये एक पैठनी है,
ये भी एक अनूठी पैठणी है, इसका हमने रिवाइव किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से मैं वो दूसरी जगह पे अटक गई है साड़ी, मैं दिखा नहीं सकती आपको। ये देखिए, ये भी चांदी के तार से बनी है, पुरानी, ये भी 125-150 साल पुरानी है। ये देखिए, मोर भी छोटे छोटे मोटिव्स होते थे, अभी तब भी जकार्ड थी। ये देखिए, जकार्ड का काम है पूरा, ये भी हमने रिवाइव किया है। इस तरह के बहुत सारे, ये कद है माने धोती, ये उत्तरीय है, और ये सर पे जो बांधते हैं फेटा, ये फेटा है। अभी सोनल जी ने एक उल्लेख किया था कि ब्रोकेड के जैकेट्स या ब्रोकेड के ब्लाउज, मुझे लगता है सुचेता ताई ने किया था, तो उस तरह का फैब्रिक हमने बनाया है ब्रोकेड का। ये देखिए, इसके जैकेट्स और ब्लाउज, ये पुराने डिजाइन्स फिर से रिवाइव करने का ये काम हम इस तरह से कर रहे हैं। ये देखिए, अभी ये बहुत पुरानी एक पैठणी मेरे पास आई थी बीजापुर से, तो उस पैठणी को हमने 7-8 रंगों में बनाया। ये देखिए, ये मूल डिजाइन पैठणी का हुआ करता था। पैठणी में कभी बड़े मोटिव्स नहीं थे, और जो सोनल जी ने कहा, ये देखिए, इसका ब्लाउज हमने पूरा जरी का ब्रोकेड बनाया इसके साथ। इसमें जैसे डार्क कलर्स है वैसे ही हमने पेस्टल कलर किए हैं, क्योंकि काला नूर अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। पुराने डिजाइन नए फॉर्म में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को वो अच्छे भी लगे और रोजमर्रा की जिंदगी हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये मैं आपको बहुत ही पुराना डिजाइन, लेकिन जो हमने अभी रिवाइव किया है वो दिखाती हूँ। इसको कहते हैं बांगड़ी मोर। मराठी में बांगड़ी का मतलब है कंगन। ये है कंगन, और कंगन के अंदर ये 4 मोर है, बाजू में ये पैरेट्स है। आप विचार कीजिए इतना छोटा काम कैसे किया होगा। ये देखिए, पीछे से बाजू में पूरे गांठें लगी है, गांठें रखने के लिए भी जगह नहीं है। इस साड़ी को बनाने में 11 महीने लगते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये देख के, इसको बनाने में 11 महीने लगते हैं। ये देखिए, ये पूरी साड़ी इस तरह से काम किया है। पूरी साड़ी में जैसा ऊपर वैसा पीछे, एक भी धागा छूटा हुआ दिखेगा तो समझिए ओरिजिनल पैठणी नहीं है। इसको बोलते हैं बांगड़ी मोर। मुझे लगता है ये हजारों साल पुराना डिजाइन है। ये हमने रिवाइव किया हुआ पीस है। अभी हम आएंगे मराठी कल्चर की ओर। मराठी में जैसा सोनल जी ने अभी कहा कि काला रंग निषिद्ध था, तो काला रंग कब पहनते थे? तो मराठी संस्कृति में जब संक्रांति का त्योहार आता है तो जो नई वधू होती है उसको काली साड़ी पहनने का रिवाज हजारों सालों से है। तो ये वो काली साड़ी है जिसको चंद्रकला बोलते हैं। चंद्र माने चांद, मून, और ये चांदनी है। चांद और ये चांदनी हजारों साल पुराना द्योतक है हमारा। रात का रंग है ये काला, और चांद का रंग है ये सिल्वर, इसीलिए काला और सिल्वर कलर का कॉम्बिनेशन किया है। ये देखिए, इस साड़ी को कहते हैं चंद्रकला। ये कहीं देखने को नहीं मिलेंगे आपको चंद्रकला, ये बहुत ही खास डिजाइन है। और इसका भी ब्लाउज जैसा सोनल जी ने कहा ब्रोकेड हुआ करता था। ये देखिए, इसके ऊपर भी हमने आसावली का मोटिफ बाहों पे दिया है। इस तरह से ये बन गई साड़ी। अब जरूरी नहीं है कि हर एक समय हम लोग डार्क कलर के रंग पहने, ये पॉसिबल नहीं है। त्योहारों के लिए ठीक है, इसीलिए हमने पेस्टल कलर में यही चंद्रकला बनाई। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि रोज के डेली रूटीन में भी आप इसका अंतर्भाव कैसा कर सकते हैं। पुराने डिजाइन हम लोगों ने जो इन्वेंट किए थे, तो तब के बुनकरों ने बहुत विचार करके इसके ऊपर काम किया था। तो यही साड़ी हमने पेस्टल कलर में बनाई। अब हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी साड़ी आई थी, ये चंद्रकला, ये भी चंद्रकला है। इसका हम ये देखेंगे। ये देखिए, गुलाब की बुट्टी है इसके ऊपर। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि पुरानी पैठणी अब जो मिलती है वैसे नहीं थी। ये भी देखिए, ज्यादातर तवा पल्लू हुआ करता था, और ये भी आसावली है। ये भी 250 साल पुरानी किसी की पैठणी, 250-300 साल, वो पैठणी हमने रिवाइव की है। इसको भी आसावली कहते हैं। ये भी एक आसावली का डिजाइन है जो बहुत पुराना है।
ये देखिए, ब्यूटीफुल असावल, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, ये भी सब रिवाइव है। अब ये इसको कहते हैं, जो सुचेता ताई ने आपको शेला बताया, माने शामुल्य, जिसको उत्तरीय कहते हैं। सुचेता ताई की सब जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं हमने हमारे शोरूम में लगाई है और लोगों को उसका मतलब भी बताते हैं। ये वो शामुल्य है सुचेता ताई, आपने जो बताया था वो, ये देखिए, ये बहुत पुराना डिजाइन है। पुणे में जो एक राजा केळकर म्यूजियम है वहां पे ये डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। कुछ चौकोन छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, इस तरह का ये शामुल्य। पहले जमाने में सिर्फ साड़ी पहन के महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, वो उसके ऊपर शेला ओढ़ के जाती थी, जिसको शामुल्य कहते हैं। तो ये हमने शेला के अलग अलग डिजाइन रिवाइव किए हैं, पुराने पुराने। जो 12 पंजा डिजाइन था वो इसके ऊपर है। इस तरह के ये डिजाइन है। ये 9 यार्ड साड़ी है। तो अभी आप ऐसा कहेंगे कि ये इसको रिवाइव करके हम ये किस तरह से इसका अंतर्भाव रोज की जिंदगी में कर सकते हैं। हमने क्या किया है कि शॉप में, जैसे शेफाली ने कहा, एक हैंडलूम यहाँ लगाया है। आप जब शॉप में आएंगे तो 2 धागे आपको बुनने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, ताने और बाने की जादू आपको पता चलती है, और वो जादू जैसे आप समझेंगे ना तो ये सब देखने में आपको मजा आएगा। अभी जो सोनल जी ने सौभाग्यवती भव ऐसा एक साड़ी पे लिखा था, वैसी भी पैठनियां हमारे पास है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ये बहुत पुरानी परंपरा हमारे यहाँ है। हम क्या करते हैं, साल में एक बार बुनकर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं कि एक साड़ी कोई व्यक्ति आके शुरू करता है और हजारों लोग मिलके एक साड़ी तैयार करते हैं। इससे भी हैंडलूम के प्रति लोगों का भाव बढ़ता है, उनको आदर होता है। मैं जो मैंने अभी कहा कि हमारे बुनकरों को क्योंकि डिग्री नहीं है, देखिए ऐसा है कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसको पैसा और प्रतिष्ठा, ये दोनों चीजों की जरूरत होती है। अगर मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी और पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा घर नहीं चलेगा, और मेरा घर चलेगा, पैसा मिला और प्रतिष्ठा नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं, मन को शांति नहीं मिलेगी। तो मैंने जब देखा कि इस तरह के बुनकर अपनी पूरी संस्कृति कायम रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये दोनों चीजें नहीं मिल रही हैं, तो मैंने ठान ली कि ये काम मैं चालू करूंगी। आई स्टार्टेड विद 2 हैंडलूम्स, और अभी अंदाजा 100 बुनकर पूरे देश भर में मेरे साथ काम करते हैं। जैसे हम महाराष्ट्र में काम करते हैं, वैसे वाराणसी और अलग अलग जगहों पे भी ओरिजिनल डिजाइन हम वहां से बना के यहाँ ला रहे हैं ताकि लोगों को पता चले। दूसरा ये है कि क्योंकि ये हैंडलूम का है तो लोग पूछते हैं कि क्या फिर ये रीजनेबल है, तो मैं कहती हूँ पावरलूम के प्राइस में तो हैंडलूम नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी कीमत में मैं उसको आपको दे सकूं। क्योंकि मैं तो सबको ये विनती करूंगी कि जैसे मोदी जी ने कहा था कि खादी, हर एक व्यक्ति ने एक तो खादी का वस्त्र होना चाहिए, तो किसी से भी लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ, लेकिन ओरिजिनल हैंडलूम का वस्त्र आप पहनने की कोशिश कीजिए। जो कॉर्पोरेट्स अभी यहाँ कुछ देख रहे होंगे, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है हमारे देश में जिनके पास कोई, किसी के पास 10 लोग काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं, आईटी कंपनीज हैं। तो मैं विनती करूंगी कि जो पुराने डिजाइन हमारे हैं, भारतीय वस्त्र परंपरा, सोनल जी से मैं बहुत सहमत हूँ कि हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन गर्म है, तो क्यों हम उसमें 3 पीस सूट पहन के जाते हैं ऑफिस में और एसी में बैठते हैं। मुझे तो ये मजाक लगता है, मैं हर वक्त कहती हूँ ये चीज। तो मैं कहती हूँ कि क्यों ना हमारे पारंपरिक कपड़े हम ऑफिस में नहीं पहन सकते क्या? तो लेकिन उसको यूजर फ्रेंडली करने के लिए हमने कुछ अलग फॉर्म में इसको तैयार किया है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये हमने एक स्टोल बनाया है, अभी इसका फिनिशिंग बाकी है। ये स्टोल ऐसा है कि आप किसी भी ड्रेस के ऊपर, माने भारतीय वस्त्र के ऊपर और बाहर के भी विदेशी वस्त्रों के ऊपर भी ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसका उपयोग ये है कि पूरी भारतीय पैठणी के डिजाइन में है, लेकिन उसको मॉडर्न लुक दिया है। इसका फायदा होता है, देखिए ये अलग डिजाइन में हमने बनाया, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे वस्त्र, ये हमारे पुराने डिजाइन चले गए, अभी इसका क्या उपयोग, क्या फायदा, ऐसा नहीं है।
हमने क्या किया कि महाराष्ट्र में जनरली पैठणी वाले साड़ी पहना करते थे, लेकिन अभी उत्तर भारतीय संस्कृति हमारे यहाँ जो आई है, माने देखो हमारे देश में एक ही साड़ी अलग अलग टाइप से पहनी जाती थी, वैसे ही वो लहंगा पहनते हैं। तो लहंगा भी हमारे ही देश की एक अलग भाग की संस्कृति है। तो आजकल लड़कियों को लहंगा अच्छा लगता है, तो हमने उसी लहंगे को एक अलग अंदाज में पेश किया। तो लोग कहते थे कि अभी कैसा करेंगे, इतनी हेवी पैठणियां आप बनाते हैं। तो पैठणी हेवी नहीं होती थी। अगर आप प्योर जरी और प्योर सिल्क का इस्तेमाल करते हैं तो वजन में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, आपको आश्चर्य होगा, बुनकर का काम और उसके कष्ट देखिए कितने हैं। ये मैंने इसमें ताना दिया है लाल रंग का सिल्क और बाना दिया है जरी। ये देखिए, ताना सिल्क है लाल रंग का और बाना है जरी, तो गोल्डन रेड कलर का ये बन गया रंग। और उसके डिजाइन देखिए, ये सब पीछे से भी आप आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, कहीं कोई धागा अटकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये भी आजकल के लड़कियों को हम लहंगे तैयार करके इसमें दे रहे हैं। ये देखिए, इस टाइप में भी बहुत खूबसूरत लहंगे हैं। इसमें धोती माने पति के लिए धोती, पत्नी के लिए हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, लहंगा वगैरह। ये ब्लाउज में है, धोती में भी, और 9 यार्ड साड़ी, 6 यार्ड साड़ी में भी इस तरह के डिजाइन बना रहे हैं। एक मजेदार चीज हमने बनाई है, बनारसी साड़ी और पैठणी का फ्यूजन किया है। ये देखिए, इसका बॉर्डर और पल्लू असावली का रखा, लेकिन बुट्टी मैंने टिपिकल बनारस की बुट्टी हमने ली। तो अगर इस तरह के फ्यूजन्स करना चाहेंगे तो इसमें मजा आएगा। 2 राज्यों का मिला, देश की 2 बॉर्डर्स की 2 संस्कृति हमें एक साथ करके ऐसा काम कर सकते हैं। अभी हम बॉर्डर्स भी बदल रहे हैं, लेकिन पल्लू पैठणी कर रहे हैं। ये मैं सब आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने देश का अलग अलग राज्यों का जो अलग अलग डिजाइन्स है उसको हम एक साथ काम कर सकते हैं इसका। ये देखिए, अभी मैं बोल रही थी कि आप ऑफिस के लिए यूज करते हैं। ये ऑफिस के लिए मैंने कॉटन की पैठणियां तैयार की। ये देखिए, उतना ही सुंदर डिजाइन प्योर कॉटन में। तो क्या ये आप ऑफिस के लिए यूज नहीं कर सकती? इसमें जरी निकाल के, जरी के जगह पे कॉटन भी हमने इस्तेमाल किया है। माने आपको रोज के लिए जरी नहीं चाहिए तो कॉटन भी यूज करते हैं। इस तरह के से पेस्टल कलर में भी हमने इसको यूज किया है। आप ये रेगुलर बेसिस पे पहन सकते हैं। माने हमारी संस्कृति ने इस तरह का ऑप्शन आपको दिया है कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ शादी ब्याह में, फंक्शंस में तभी ये यूज करें। इस तरह का कपड़ा प्योर कॉटन घर में धो सकते हैं, ये हम पहन सकते हैं। इसके भी हमने सलवार कमीज के सूट्स, लहंगे, ये सब इसमें भी हमने तैयार किया है जो आप रेगुलर यूज करते हैं। जेंट्स के लिए भी इसमें हमने बहुत सारे वस्त्र तैयार किए हैं। तो इसका इस्तेमाल, मैं जो आपको बोल रही थी कि कॉर्पोरेट्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है, मैं तो विनती करूंगी कि जिनकी कंपनियां हैं उन्होंने सप्ताह में 2 बार आप भारतीय वस्त्र परंपरा के अनुसार आइए, वो वस्त्र पहन के आइए और देखिए, एक माहौल बदलता है ऑफिस का और मजा आता है आपको। तो ये हमारी संस्कृति इस तरह भी टिकेगी, ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये करेंगे तो आपको काम करने में भी और मजा आएगा। और हमारी संस्कृति के, कोई साउथ इंडियन एक साथ काम करता है, कोई बनारस का होता है, उत्तर हिंदुस्तानी, कोई मराठी होता है, या अलग अलग जगह पे एक साथ आएंगे ना, तो अपने देश के लिए भी एक गौरव आप महसूस करेंगे। मैं ये कोशिश कर रही हूँ, ऐसी कोशिश मैं कर रही हूँ कि क्यों ना बुनकरों को डिग्री मिले। सिर्फ डिग्री का है, हर एक बुनकर एक डॉक्टरेट के समान है। लेकिन सांगली में हम एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सांगली ये पश्चिम महाराष्ट्र में आता है, कोल्हापुर, सांगली, इचलकरंजी, और वहां पे कुछ साल पहले तक हजारों हैंडलूम की खड़खड़ाहट सुनाई देती थी। अभी देखने के लिए भी अनफॉर्चुनेटली एक भी लूम में नहीं है वहां पे। तो वहां पे हम ये कॉलेज चालू कर रहे हैं हैंडलूम का, जहां एक छत के नीचे आपको हमारे देश के अलग अलग राज्यों का वीविंग आपको सिखाया जाएगा। उसमें आपको डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेस है, तो ये आप सीख सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा बाहर के देशों से हमें रिक्वायरमेंट आई है कि हमें सिखाइए। तो क्यों ना हमारे युवा आगे आते हैं।
महिलाएं और पुरुष, इसमें डिग्री हो सकती है, इसमें आप हजारों लोगों को हाथ में काम दे सकते हैं, हम सिखाएंगे, आप उसकी इंडस्ट्री चालू कीजिए। ये मैं आह्वान इसलिए कर रही हूँ कि सिर्फ बुनकर, सिर्फ मैं या मेरे जैसे और 2-4 लोग जैसे पुष्यमित्र काम कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं इसके लिए, ये 4 लोग मिलके नहीं कर सकते। आपके इन्वॉल्वमेंट के बजाय ये हम नहीं कर सकेंगे काम। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि आप आइए यहाँ सीखने के लिए। हम गरीब महिलाओं को बिना पैसे लिए सिखा रहे हैं यहाँ पे। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, नॉट अ सिंगल पे। तो आप आइए यहाँ पे सीखिए, एक इंडस्ट्री चालू कीजिए और इससे एक्सपोर्ट कीजिए। और एक जैसा मोदी जी ने अभी सबको एक आह्वान किया कि आप स्वदेशी का अंतर्भाव करें अपने में, तो उस तरह से आप ये काम चालू कर सकते हैं। तो मेरी सबको रिक्वेस्ट है, शेफाली भी बहुत अच्छा इसमें काम कर रही है। शेफाली अपने बुनकरों को स्क्रीन के सामने ला रही है, जो कभी बुनकर हमें दिखते नहीं है, पर्दे के पीछे रहते हैं। तो ये बुनकर आगे आए, ये सिखाएं, हमारे साथ हैं। और एक मैं आपको विनती करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे यहाँ मराठी लोग तो बहुत सारे आते हैं पुरानी पैठनियां, तो मुझे लगता है देश भर के लोग ये देख रहे होंगे। आपके यहाँ भी जो पुरानी पैठनियां या पुराने बनारस की साड़ियाँ, कांजीवरम, धर्मावरम, ऐसा कुछ पुराने डिजाइन है, तो आप जरूर लेके आइएगा जरी में। तो वो हम यहाँ पे उसको रिवाइव कर सकते हैं। जो कर सकते हैं मैं आपको दिल से बोलूंगी कि वो हम रिवाइव करके आपको दे देंगे, हमें खुशी है वो करने में। तो इसका एक आनंद है। और एक हमने ठानी है कि ब्रिटिशों ने हजारों बुनकरों के अंगूठे तोड़े थे। मेरी इच्छा है कि मरने से पहले कम से कम 1000 बुनकर उनके अंगूठे फिर इस काम में मैं लगाऊं। तो मुझे लगता है कुछ मेरी जिंदगी काम कर गई। इसीलिए सोनल जी ने जब कहा तो मेरी आंखों में पानी आ गया। आप आइए पुणे में, आप सबका स्वागत है। और शेफाली से मिलिए, शेफाली आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी देगी इससे। और मेरी इच्छा है कि आप यहाँ आके ये सब रिवाइवल का काम देखें, उसकी सराहना करें। हमारे बुनकरों के पीठ पे थोड़ी सी एक आदर की और सम्मान की थाप दे दें, तो उनका भी सीना और सर ऊंचा हो जाएगा। एंड वी आर सो थैंकफुल टू शेफाली और बाकी सब लोगों को मेरा प्रणाम। और मैं मेरी बात खत्म करती हूँ। नमस्कार। हेलो, कुछ सवाल होंगे किसी को तो पूछ। थैंक्स अ लॉट अनघा, इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। जैसा मैंने सोचा था कि इसको हम पास से शुरुआत करेंगे, and I will leave you to a point where I leave you with a note of hope, knowing that this tradition is not going to die out, that there are people like Anagha Gaisas, there are a lot of other people also who are trying to revive our traditional knowledge and make sure that the weavers are not exploited, that they have a platform. And what she is saying is absolutely correct, that you need both money as well as prestige for this craft to survive and to touch new heights. सिर्फ पैसा होने से भी नहीं चलेगा और सिर्फ प्रेस्टीज होने से भी नहीं चलेगा, ये दोनों चीजें चाहिए। एक वीवर को, उसको आत्मसम्मान भी चाहिए और उसको अच्छा रोजगार भी चाहिए, so that he can go ahead and look after his family and make sure that this traditional knowledge is not lost. I am deeply grateful to Indic Academy and to Harikiran Vadlamani for getting me started on this idea, because this is something that I wanted to do for a long time, interested as I am in arts and crafts and textiles in particular. And when I thought of this webinar, I had this loose structure in my mind that I'll start with the connection between the ritual and the spiritual. I will talk about the place of textiles and I will get somebody to talk about it, somebody who is, qualified to talk about it, like Sucheta Tai. And then I will not end there, because there are a lot of people who talk about the past and who talk about the knowledge that we had, but I want people to understand that this is a tradition that lives in India. It has a bright future. And I wanted to get people like Pushamitra and Anagha involved, who will tell you what is the way forward.
And as she has said, as Sonalji has also said, as Sucheta Tai has also said, that this is a tradition that lives in India, that has survived for over 4,500 years, despite the invasions, despite the industrialization, despite all the possible challenges. And ये हमारी धरोहर है. It is our cultural heritage, and we owe it to ourselves as a nation to make sure that this art and craft survives, it thrives, and it is carried forward to the future generations. As Modi ji has given a call of Atmanirbhar Bharat, it becomes all the more important that we ensure that in everything that we do, and handloom is not just about saris, it's not just about dhotis. You can use handloom in your curtains, in your home furnishings, in your bed sheets, in your towels, in your gamchas, in lungis, in dhotis, in kurtas, in dupattas. I would request everybody, like Anagha has already done, to incorporate handloom as a part of your clothing. At least use one element. If you're wearing a kurta, if you're wearing jeans, fine, wear jeans. If you want to wear a mass-produced t-shirt from Zara, please do that. But then wear a scarf or wear a stole that is hand-woven. Include that one element. Include a bag that has some hand embroidery done on hand-woven cloth. It sets you apart. It makes you look different from somebody else, rather than looking like a pale Xerox copy of 15 other people. And it's such a beautiful way to incorporate our textiles, our heritage into our everyday living. So this is a thought that I want to leave you all with. And I'm deeply grateful to all the speakers, for Sonalji, for giving such a beautiful keynote address. I thank Sucheta Tai for her excellent informative presentation. I thank Pushyamitra for the awesome work he's been doing and how he's reviving natural dyes. And I want to thank Anagha for the beautiful visual presentation that she gave us. It was a sensory experience. And I don't think very often you have experiences like this in seminars. So thank you to all my speakers. Thank you to the 200 odd people who logged in for 4 hours and listened very patiently to all the speakers and all your questions. One of the questions was, as I said already, that will this be recorded and will this be put on YouTube? Yes, it will be. It will come on the YouTube channel of Indic Today in a couple of days, so you can refer to it again and again. It is a knowledge that I want people to have freely, and to ensure that it gets them started off on their own journey of exploring Indian textiles. There are so many things that we can document. Every state in India, every region has its own tradition of weaving, has its own tradition of art and craft, which may be lost right now, but that doesn't mean that you cannot try and find it and document it. So please take it up. Indic Academy gives scholarship, Indic Academy gives grants, Indic Academy accepts book proposals based on these Indic topics. So if you want to do something about this, then please approach Indic Academy. We have a website that details all the schemes that Indic Academy has. This session will be telecast on Indic Today YouTube channel in a few days. And we all know that Sonal Mansingh ji is on Facebook and on Instagram, and she conducts Facebook lives on many different topics. So please follow her. I am on Twitter as Chef Vaidya. I am on Facebook as Shefali Vaidya. Please follow me for future announcements of webinars and talks on these topics on temples and textiles. Anagha is on Facebook with her page called Saudamini Handlooms. Many of you asked how you can find her products and how you can get in touch with her. So please follow the page Saudamini Handloom on Facebook and connect with Anagha so that you can, if you want to see her store, if you want to see her looms, please come to Pune. She will be very happy to take you around. I will be very happy to take you to show her, see her weaving center. And Pushyamitra again is on Facebook as well as on Instagram under his label EcoFab. So please follow him to see his experiments in natural dyes and valuable knowledge in block printing. And keep in touch. I always respond wherever possible on Twitter and Facebook. Sometimes I have too many replies, so I can't. But if you have any legitimate queries, please reply. My email address is shefalivi@gmail.com. So if you have any legitimate questions, please send them to me. I would be happy to answer. And once again, thank you so much for being a part of this webinar. I am deeply grateful to all the speakers.
to the audience as well as to Indic Academy, Harikiran Vadlamani ji, Anaga's Weavers, Vaibhav, and sorry, I don't remember the name of the second one, Abhay and Vaibhav. And I thank the technical team of Indic Academy, Srini ji and Ram ji, for supporting this and for ensuring that a very smooth session happened, and it's telecast live on Facebook and it will be on YouTube. And I hope to curate another seminar on temporal architecture with similar speakers. But now the bar has been set so high for myself, considering the level of the presentations that each speaker has presented today, that I have to be more careful, and I have to think this too, to make sure that the next webinar is also of this quality. Once again, a huge thank you. Dhanyosmi. Dhanyavad.